In fact, the last 2 weeks we're looking at this aspect of the blessings of trials. और पिछले 2 बार से हम देख रहे थे कि हम जो परीक्षाएं जो हमारे पास आती हैं उससे हमें क्या-क्या आशीषें मिलती हैं. Prior to that, we spoke about blessings of unseen things. Things we don't see are blessings for us. We spoke about that. उससे पहले हमने देखा था कि वो आशीषें जो हमें दिखाई नहीं देती. And then 2 weeks back, we began to talk about things which we see, but we don't think they're blessings, and there are trials. पिछले हफ्ते हमने देखा था वो आशीषें जो हम दिखाई देते हैं पर उसको हम आशीष नहीं समझते और वो हमारी परीक्षाएं होती हैं. We think that any troubles we go through is actually punishment. हम सोचते हैं जो परीक्षाओं में से समस्याओं में से जा रहे हैं वो हमारे ऊपर सजा मिल रही है हमें. But for us it's a blessing when it's in the will of God, when we face suffering because of our obedience to God. और ये हमारे लिए आशीष का कारण बनती है जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में दुखों को उठाते हैं. In the last 2 Wednesdays we covered 7 aspects, 7 blessings of going through trials in the will of God. पिछले 2 बुधवार में हमने देख लिया 7 आशीषों को जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं और उन समस्याओं में जाते हैं. For the sake of continuity, I'm going to go through the 7 points. I just mentioned the 7 points before I go on to the last 3 points in this session today. और इससे पहले कि हम आखिरी 3 पॉइंट जो बचे हैं उन पे जाएं, हम पहले के जो 7 पॉइंट हमने देखे उनको फिर से एक बार दोहरा लेंगे. And we first spoke about how through trials we grow in the knowledge of God. पहली बार हमने देखा था कि कैसे परीक्षाओं में से जब हम जाते हैं तो परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ते जाते हैं. Number 2, we spoke about how through trials our faith gets refined. और दूसरी बात हमने देखा था कैसे हमारे विश्वास से हमारा परीक्षाओं से हमारा विश्वास जो है वो और स्वच्छ और परिपक्व हो जाता है. And number 3, we spoke about how when we go through trials and we praise and worship God in trials, we are giving God the privilege of showing us off even to Satan. और तीसरी बात हमने देखी थी जब हम परीक्षाओं में और समस्याओं में से सफल होकर निकलते हैं तो हम परमेश्वर को ये मौका देते हैं कि वो शैतान को हमारे को बड़ी खुशी से दिखा सके. Number 4, we spoke about how the troubles we go through in the will of God are creating for us eternal glory in heaven, rewards in heaven. और चौथी बात हमने देखी थी कि कैसे जब परमेश्वर की इच्छा में उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं और समस्याओं में से निकलते हैं तो परमेश्वर हम अपने लिए स्वर्ग में महिमा इकट्ठा करते हैं. Number 5, we spoke about how out of the 9 qualities of the fruit of the Spirit, 3 of them, patience, faith, and self-control, are worked out by God through difficult people and difficult circumstances. और पांचवी बात हमने देखी थी कैसे जो आत्मा के जो फल है 9 फल है उसके से जो 3 गुण है उसमें धैर्य और पेशेंस और हमारा संयम और हमारा जो ये चीजें जो हैं ये 3 गुण जो हैं हमारे को ये परीक्षाओं में से जाने के बाद हमें मिलता है. And number 6, we spoke about how through trials God keeps us humble. He doesn't allow us to become proud. और छठी बात हमने देखी थी कैसे परीक्षाओं में से हम जब जाते हैं तो परमेश्वर हमें नम्र रखता है. And when we are humble, we are able to receive more grace from God. और जब हम नम्र होते हैं तो परमेश्वर से हमें और अनुग्रह मिलता है. And number 7, we spoke about how when we go through trials, God is preparing us for the ministry for the future to encourage people who go through difficulties that we have gone through. और साथ ही बात हमने देखी थी कि जब हम परीक्षाओं में से जाते हैं सफल होकर निकलते हैं तो हम दूसरों को भी उसके उदाहरण बनते हैं कि दूसरे लोग भी हमारे जीवन से सीख सकते हैं कि कैसे हम वो भी इस समस्याओं में से निकल सकते हैं. We're going to go on to 3 more aspects of blessings which I'm going to elaborate. और हम 3 और आशीषों को देखेंगे जिसको भाई आज विस्तार से हमें समझाएंगे. Number 8 is the fact that since we are God's workmanship, God through us wants to demonstrate to the world the peace beyond understanding. और क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ की रचना है परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर हमारे द्वारा से संसार को वो शांति दिखाना चाहता है जो समझ से परे है. Now in the Old Testament time the Lord chose the nation of Israel to be his holy people and that they would be a display of God's splendor. परमेश्वर ने पुराने समय में इस्राएलियों को चुना कि वो एक पवित्र राज्य बने और उनके द्वारा से परमेश्वर अपनी महिमा को दूसरे लोगों पे दिखा सके. In Isaiah 49:3 he says, "You are my servant Israel, in whom I will display my splendor." और यशायाह 49 उसकी तीसरी आयत में परमेश्वर कहता है कि तू मेरा दास है इस्राएल मैं तुझसे अपनी महिमा प्रकट करूंगा. Also in Isaiah chapter 61 verse 3, prophecy about New Testament believers, the Lord says, और यशायाह 61:3 में जो नए नियम के विश्वासी हैं उनके लिए परमेश्वर कहते हैं they'll be called oaks of righteousness,
a planting of the Lord for the display of his splendor. और वो कहता है कि सियोन के विलाप करने वाले सिर पर से राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध ले, क्योंकि तू विलाप दूर करके हर्ष के तेल लगाएगा और उसकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे कि वे स्वर्ग में बान वृक्ष और स्वर्ग यहोवा के लिए हुए कहलाएं. A New Testament, the equivalent of that is Ephesians 2:10, we are God's workmanship. और उसका जो नए नियम में अगर हम इसी के साथ का देखें तो इफिसियंस 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के सिरजे हुए लोग हैं. Now, how are we God's workmanship when we go through trials? तो हम परमेश्वर के सिरजे हुए लोग कैसे बनते हैं जब हम परीक्षाओं में से जाते हैं. Now, through the cross, the Lord has given us his peace. क्रूस के द्वारा से परमेश्वर ने हमें अपनी शांति दी है. And this peace that we have in Christ is a peace beyond understanding. और जो शांति परमेश्वर ने मसीह के द्वारा से हमें दी है वो समझ से परे की शांति है. And the word peace in the New Testament is a word called eirene, which means oneness. और यूनानी भाषा में ये जो शांति शब्द है वो आयरेने है, जिसका मतलब है एकता. Which means we are one with God through sacrifice of Christ. और प्रभु उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा से हम परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं. We are made whole. हम एक बना दिए गए हैं, पूरे एक बना दिए गए. And the Old Testament time, the word for peace is a word called shalom, which also means made whole. और पुराने नियम में शालोम शब्द जो शांति के लिए प्रयोग किया गया उसका भी मतलब ये है कि पूरा बना देना, संपूर्ण कर देना. So therefore, through Christ, we are one with God, we are reconciled to God, and we have peace with God. और तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया, परमेश्वर के साथ हमारी शांति हो गई. Colossians chapter 1, 19-20 says, कुलुसियों पहला अध्याय 19वीं और 20वीं आयत में ऐसा लिखा है, For God was pleased to have all his fullness dwell in him, meaning in Jesus. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी संपूर्ण परिपूर्णता वास करे, जो कि प्रभु यीशु मसीह है. And through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. और उसके क्रूस पे बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की. And like I often share about this peace nobody can take away. No human being can take away, no circumstance can take away. और ये शांति जिसके बारे में भाई अक्सर बात करते हैं वो ये शांति है जो ना तो कोई परिस्थिति, ना कोई समस्या, कोई भी चीज हमारे को इस शांति से अलग नहीं कर सकती. And because we are God's workmanship, God wants to display this peace to the world outside. और क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ की रचना है, इसलिए परमेश्वर हमारी ये शांति को हमारे द्वारा से जो बाहर का संसार है उसको दिखाना चाहते हैं. People are searching for peace. Everybody in the world is wanting peace. They don't know what they're actually searching. और ये सब लोग शांति की खोज में, असल में उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या खोज रहे हैं. In fact, in our country, people are searching for this peace only, oneness with God. और हमारे देश में तो खासकर जो लोग हैं वो ही इसी शांति को ढूंढ रहे हैं जो कि परमेश्वर के साथ एकता है, मेल है. Now, they believe that God is the highest spirit, Param Atma. और ये मानते हैं कि हमारे देश के लोग कि परमेश्वर जो है परम आत्मा है. And they believe they have a human spirit called Jivatma. और जो मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो जीवात्मा है. And the Paramatma, Jivatma separated because of pap, because of sin. और पाप के कारण से परमात्मा और जीवात्मा जो है अलग अलग हो गए. And they know that. They're searching for that oneness. और इस बात को जानते हैं और इस एकता को ढूंढ रहे हैं. How can I find oneness with that God? कि मैं कैसे उस परमेश्वर के साथ एकता पा सकूं. And we have been given that oneness. और हमें ये एकता परमेश्वर में दी है. This oneness doesn't depend upon problems. और ये एकता जो है ये समस्या के ऊपर नहीं निर्भर करती. In the midst of problems, you can have that peace. इस समस्याओं के बीच में भी हमारे पास वो शांति हो सकती है. Now, supposing people see the peace in me, people of other faiths, and they ask me, you got a lot of peace, do you have any problems? और जब लोग देखें, अगर भाई को जैसे कोई देखें, कोई कहे कि भाई आपके अंदर बड़ी शांति है, कि आपके पास कोई समस्या नहीं है क्या? If I say I have no problem, they will say, you got no problem, so you have got peace. I can understand that. तो कहेंगे, अगर भाई कहेंगे भाई हाँ मेरे पास कोई समस्या नहीं, तो कहेंगे अच्छा आपके पास समस्या नहीं है इसलिए आपके पास शांति, आप हमारी समझ में आता है. But I have no peace because I have problems, that other man will say. और वो दूसरा आदमी कहेगा मेरे पास शांति नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत समस्या है. So they think that peace means absence of problem. That's what people think. और वो लोग या अमूमन लोग सोचते हैं कि अगर समस्या नहीं है इसका मतलब शांति है. That's a worldly idea of peace. और ये शांति का संसार के लोगों की ये सोच है.
For example, two countries are at peace when they're not at war. उदाहरण के लिए दो देश शांति में हैं अगर वो आपस में युद्ध नहीं कर रहे, And therefore, that's their idea of peace. Whereas the peace God gives us is a peace in the midst of difficulties. और ये तो संसार के लोगों की सोच है शांति के बारे में, पर परमेश्वर जो है समस्याओं के बीच में हमें अपनी शांति देते हैं। And this peace is preserved by you and me when we walk in obedience to the Lord's commandments. और ये शांति हम अपने अंदर बना के रखते हैं जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चलते रहते हैं। In John 16:33, Jesus says, यूहन्ना 16:33 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, I've told you these things that in me you will have peace. तो मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। In the world you will have troubles, but take heart, I overcome the world. संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। And as we obey the Lord, we preserve the peace independent of circumstances. और जब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हम परिस्थितियों के अलावा भी अपनी शांति को बना के रखते हैं। So God wants to show to the world this peace that we Christians have in the midst of difficulties. और परमेश्वर ये शांति जो हम मसीह लोगों के बीच में के अंदर होती है, वो परमेश्वर चाहते हैं कि उस संसार के लोगों को भी दिखाए कि ये शांति कैसे बना के रखते हैं समस्याओं के बीच में। And that's a demonstration to the people who are searching for peace and oneness with God. और ये परमेश्वर जो है दिखाना चाहते हैं कि कैसे समस्याओं के बावजूद परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मेलता हो सकती है। So when we have problems and we have got peace and someone from some other faith asks us, we have a lot of peace, any problems? और जब बहुत लोग देख रहे हैं हमारे जीवन को कि भाई कोई ये बड़े, वो कहते हैं कि क्या आपके पास बहुत शांति है, क्या आपके पास बहुत समस्याएं हैं? And we have problems. हमारे पास समस्याएं हैं। I tell them, yeah, I've got this problem, I've got the problem, I've got that problem. हम उन्हें बताते हैं हमारे को ये समस्या है, ये फलानी समस्या है। Then they will say, how is it that you got so much of peace in spite of problems? फिर वो पूछते हैं कि इतनी समस्याओं के बावजूद आपके पास ये शांति कैसे है? That's why it's a peace beyond understanding. इसलिए इस शांति को बोला गया ये शांति जो समझ से परे है। And how can God demonstrate that peace to the world unless we have problems? और परमेश्वर ये शांति संसार को कैसे दिखा सकता है जब तक कि हमारे जीवन में समस्या ना हो? That is why we have problems sometimes. इसीलिए ये समस्या कई बार हमारे जीवन में आती है। Through that, people will come to know that they have got something that they don't have, that is a peace beyond their understanding. और उसके द्वारा से वो लोग समझते हैं कि हमारे पास वो शांति है जो उनकी समझ से परे है। So my wife was sick for 15 years with a mental sickness. People are perplexed. How come I've got peace when my wife is so sick? और जब भाई की पत्नी बीमार थी मानसिक रीति से 15 साल तक, तो भाई के पास अपनी शांति परमेश्वर ने बना के रखी थी। लोग पूछते थे कैसे इस समस्या के बीच में आप ये शांति बना के रखते हो? My own father-in-law was so much touched, impacted by my response to my wife's sickness. और भाई के जो ससुर थे वो भाई का जो प्रतिक्रिया थी अपनी पत्नी की बीमारी को लेके, उसको देख के वो बहुत प्रभावित थे। And then my father even told me that I don't know how you are able to manage this. It's something unique about you. I said, not about me, it's about my Lord. और भाई के ससुर ने बोला, भाई ये तुम्हारी ये समस्या के बावजूद तुम ऐसे शांति में हो, मैं समझ से मेरे नहीं आता है, कैसे तुम करते हो इस बात को? तो भाई ने बोला कि ये मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर शांति है। And by the grace of God, my father-in-law turned to Christ before he passed away. और परमेश्वर का अनुग्रह है कि इससे पहले कि उनका देहांत हुआ, वो प्रभु के पास आ गए। We don't have to go and broadcast our problems, but when people ask us, then we have to say, yes, I have a problem, but my Lord gives me his peace. हमें अपनी समस्याओं को सारे में ढिंडोरा नहीं पीटना, पर हाँ, जब समस्या होती है, लोग हमसे पूछते हैं और शांति के बारे में पूछते हैं, तब हम उन्हें बता सकते हैं कि प्रभु ने कैसे मुझे समस्या के बीच में शांति दी है। But when I tell them I've got problems, I also add something by saying, I have no problem which my Jesus cannot solve. और जब ये शांति की बात लोगों को बताते हैं, एक बात और जोड़ देते हैं कि मेरे प्रभु के पास मेरी कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो मेरा प्रभु जिसका समाधान ना कर सके। And I quote a verse in scripture where Jesus says in Matthew 11:28 to 30. और भाई फिर जो वचन में लिखा है मत्ती 11 अध्याय 28 से 30वीं आयत तक, उसको पढ़ के बताते हैं। The Lord says, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon yourself and learn from me, for I am gentle and humble heart. You'll find rest for your souls. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Rest for the soul simply means peace of mind. और मन में शांति होना मतलब हमारे जीवन में शांति होना। Now, the word soul is a Greek word called psyche, which means emotions
intellect, and the will. और जो ये प्राण है, इसका यूनानी शब्द है ज़ाइके, जिसका मतलब है बुद्धि और ज्ञान। And rest for the soul is peace of mind. You are at rest. और जब हमारे मन में शांति होती है, तो हम ये शांति जो है, ये हमारे मन में शांति होती है। So the key to any problem that you have is that ask God wisdom to solve the problem. If you can't solve the problem, it's not in your means, give it to Him and He will solve it. तो ये समस्या का समाधान जो है, इसके लिए परमेश्वर अपना ज्ञान बुद्धि हमें देता है, जिससे हम उसका समाधान कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं कर पाते, तो हम ये समस्या को परमेश्वर को दे दें, क्योंकि वो समस्या का समाधान कर सकता है। What we cannot do with what He expects us to do, if He cannot do, then He will solve the problem Himself. अगर वो समस्या जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप अपने जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया, उसे उसका समाधान करें, अगर हम नहीं कर पाते, तो वो खुद उसका समाधान करेगा। If there's something for us to do to solve the problem, He will give us wisdom, He'll give us strength to do it. अगर वो हमारे को ही करनी है, तो परमेश्वर उसके लिए हमें बुद्धि और सामर्थ देगा कि हम उसको सही कर सकें। But some are not in our control. और कुछ समस्या हमारे हाथ में नहीं होती, Especially when it concerns somebody else. खासकर जब वो दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में हो। And therefore, as you walk with the Lord, He will give rest for the soul, peace of mind, and then that will be an example to other people. और जब हम इस समस्या में जाएंगे, परमेश्वर हमारे मन में हमारे को बुद्धि, हमारे प्राण को शांति देगा, और ये एक उदाहरण बन जाएगा दूसरे लोगों के लिए। So the eighth blessing of trials is that through those trials, God is demonstrating through us to the world the peace beyond understanding. Here we are the workmanship of God. और आठवीं शांति जो आठवीं आशीष जो है इस समस्याओं के बीच में जो हमें मिलती है, परमेश्वर जो है हमारे को दिखाने का, हम एक परमेश्वर की शांति संसार को दिखाने का हम कारण बन जाते हैं उसकी समझ को। And the ninth blessing, और नौवीं आशीष is something fascinating, that is manifesting the love of God. वो बहुत अद्भुत है, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना। Have you ever considered the connection between love and suffering? कभी आपने इस बात की तुलना करने की देखी है, सोचने की कोशिश करी है कि प्रेम और समस्या का जो सतावट है, दुख है, उसका मेल कैसा है? Romans chapter 5 verse 2 onwards is written. रोमियो 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत के आगे ऐसा लिखा है, We rejoice in the hope of the glory of God. कि जिससे हमारे विश्वास के उस परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करते हैं। Not only so, we rejoice in our suffering. और हम अपने क्लेशों में घमंड करते हैं, ना केवल अपने क्लेशों में घमंड करते हैं। We rejoice suffering because suffering produces perseverance, perseverance character, character hope, and hope does not disappoint us because God's love is poured out into hearts the Holy Spirit whom He has given us. और केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें कि यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। Now, Christian life is a life of faith. और ये मसीह जीवन जो है विश्वास का जीवन है। By faith we live for the Lord, and by faith to rejoice even to trials and in suffering. और विश्वास से ही हम जो है उसमें स्थिर रहते हैं और आनंद करते हैं, जब परीक्षाओं में से मुसीबत में से जाते हैं तो हम आनंद करते हैं। We rejoice in the hope of the glory of God. और महिमा की आशा जो परमेश्वर की है, उसमें हम आनंद करते हैं। Christ in us means hope of glory. मसीह हमारे में महिमा की आशा है। We rejoice in that hope of glory. और हम उसी महिमा की आशा में आनंद करते हैं। Nothing to do with circumstances. We rejoice in the fact that we leave this world, we're going to go to heaven. We have the hope of glory because Christ lives in us. और हम सब समस्याओं में हम आनंद करते हैं क्योंकि हमारे अंदर आशा है, और हम जानते हैं कि हम जब हम अपने पिता के पास जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, और यही हमारी एक आशा बनी रहती है। Now, when we rejoice in our suffering also, और जब अपने दुखों में, क्लेशों में भी आनंद करते हैं, suffering produces perseverance. ये जो सतावट है, दुख जो है, क्लेश जो हमारे अंदर धीरज लाता है। Perseverance character. और धीरज से हमारे अंदर एक चरित्र उत्पन्न होता है। Character hope. और ये इससे हमारी आशा उत्पन्न होती है। And hope does not disappoint us because God's love is poured out to us through His Spirit. और ये आशा जो है हमारी जो है नहीं टूटती, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दी गई है। Now, when you go through trials, the normal tendency is of any human being, any Christian, is to depend on God naturally, because whom else can we go to? जब हमारे पास कोई समस्या आती है, तो एक स्वाभाविक रीति से हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं। We learn of God through trials. हम परमेश्वर से सीखते हैं अपनी परीक्षाओं में। Now, in Psalm 119, verse 71, the psalmist says, भजन 119 71वीं आयत में भजन लिखने वाला लिखता है,
It is good for me to be afflicted that I may learn your decrees. मुझ पे दुख हुआ, ये मेरे लिए भलाई हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। Learning decrees of God means knowing Him more and more. परमेश्वर की विधियों को सीखना मतलब उसको और अधिकाई से जानना। Remember the time when the Lord told Moses that Moses had found favor in God's sight. और परमेश्वर मूसा से कहता है कि मूसा ने मेरी नजर में वो उसको एक आदर मिला है। And Moses responds by saying in the book of Exodus, 33rd chapter, verse 13, और निर्गमन 33वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में मूसा ऐसा उसका उत्तर देता है, if I have found favor in your sight, teach me your ways that I might know you and continue to find favor with you. और यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। When we know God more and more through the word, जब वचन से परमेश्वर को और अधिकाई से जानते हैं, the amazing blessing of that is we'll have the love of God in us. तो उसकी अद्भुत आशा यह है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय अंदर आ जाता है। John 17:26, Jesus tells to the Father in heaven when he prayed, और यूहन्ना 17 उसकी 26वीं आयत पे प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना स्वर्ग से पिता से प्रार्थना करते हैं, उसमें बोलते हैं, I have made you known to them and I will continue making you known to them. और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। That the love you have for me will be in them and I myself will be in them. कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें भी रहे और मैं उनमें रहूं। The love God the Father which he has for God the Son is perfect love, and that love we have the potential to have when you grow in the knowledge of God. जो प्रेम, जो अद्भुत प्रेम परमेश्वर का जिसमें कोई दोष नहीं था, जो अपने पुत्र के साथ था, वही प्रेम हमारे से परमेश्वर करता है जब परमेश्वर का आत्मा हमारे हैं, उसका आनंद हमारे में बना रहता है। When you walk in the ways of God, जब परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, we know God more and more. और परमेश्वर को और अधिकाई से जानते हैं, We face difficulties. हमें समस्याएं आती हैं। When you face difficulty, we'll depend more and more on God. और जब समस्या आती है, हम और अपने पिता पे और ज्यादा निर्भर होते हैं। We'll know Him even more. हम उसको और अधिकाई से जानते हैं। When you know Him even more, God will fill us with His love. और जब उसको और अधिकाई से जानते हैं, परमेश्वर अपने प्रेम से हमें भर देता है। And this love is poured out into our hearts to the Holy Spirit whom He has given us. और परमेश्वर हमारे हृदय में अपनी आत्मा के द्वारा से उस प्रेम को हमारे में भर देता है, उंडेल देता है। This agape love, sacrificial love, godly love is a love in the Spirit. और ये अगापे प्रेम जो बलिदान वाला प्रेम है, ये आत्मा के द्वारा से आता है। Now the church in Colossae was known for their faith in Christ and love for each other. कोलोसी जो कलीसिया थी, उनकी पहचान यही थी कि वो उनका प्रभु यीशु मसीह विश्वास और आपस में जो प्रेम था, उसी से वो जानी जाती थी। Faith in Christ and love for each other. प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास और आपस में प्रेम। Such a church we will say is a perfect church. ऐसी कलीसिया को हम कहेंगे कि भाई बिल्कुल सिद्ध कलीसिया है। And in Colossians chapter 1 verse 8, the Apostle Paul writes about this church having a love in the Spirit. और कोलोसियों 1:8 में पौलुस इस कलीसिया के बारे में लिखता है कि वो आत्मा प्रेम जो आत्मा में है। And the word spirit there in English Bible is in capital S. Capital S means Holy Spirit. और यहाँ इंग्लिश भाषा में जो प्रेम शब्द है, आत्मा जो लिखा गया, आत्मा जो शब्द है वो बड़े शब्द से लिखा गया, इसका मतलब पवित्र आत्मा है। In English Bible, whenever you find the word spirit in capital, it's Holy Spirit, and it's small, it is human spirit. और इंग्लिश बाइबल में अगर कैपिटल शब्द से लिखी हुई है, बड़े अक्षरों में लिखा है आत्मा, स्पिरिट लिखा है तो मतलब पवित्र आत्मा है, और छोटे अक्षरों से लिखा है तो मतलब मनुष्य की आत्मा। So the love these people had for each other was a love in the Holy Spirit. तो इनके अंदर जो आपस में प्रेम था, वो पवित्र आत्मा का प्रेम था। That is how we can love even enemies. Sometimes people ask me, how can you love enemies better? It's not practical. इसलिए हम इस कारण से हम अपने वैरियों से भी प्रेम कर सकते हैं। इसलिए कई लोग पूछते हैं कि तुम ये बड़ा अस्वाभाविक है, कैसे आप लोग अपने वैरियों से भी प्रेम कर सकते हो? It's a love in the Spirit, given by the Holy Spirit, not by our strength, not by our effort. ये पवित्र आत्मा के द्वारा से हम प्रेम हमारे अंदर है, उसके द्वारा से हम प्रेम कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य, अपने आत्मा के द्वारा से हम नहीं कर सकते। And when we go through trials, we tend to depend more on God, and then you'll find that this love is manifest in amazing ways. और तो जब हम परीक्षा में जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को चखते हैं, और वो हमारे जीवन से वो प्रेम जो है प्रकट होता है अलग। I had the privilege of listening to the underground church in Russia in 1991 when I went there.
तो भाई जब रशिया में गए थे 1991 में, तो भाई को आदर मिला कि वहाँ की जो छुपी हुई कलीसिया है उस पे प्रचार कर सके। The Lord brought many people to his kingdom. और परमेश्वर अपने राज में बहुत से लोगों को लेके आए। And there are many people there in the churches who have been Christians for many years during the communist regime also. और बहुत से मसीह लोग थे वहां पे जो उस कम्युनिस्ट राज के दौरान भी जो है विश्वास में थे। And they had gone through a lot of troubles when some of them had their arms and legs cut off by the communists. और उन्हें बहुत दुखों में से जाना पड़ा, कईयों को अपने हाथ पैर काट दिए गए थे उनके, क्योंकि वो कम्युनिस्ट लोगों ने उनको काट दिया। And yet they had so much of joy. फिर भी उनको बड़ा आनंद था। The amazing love they had was because I'm a stranger. I went there as a stranger, but then in a matter of 2 months, they became so close to me. और भाई तो वहां परदेशी होके गए थे, जानते भी नहीं थे वहां के लोगों, पर 2 महीने के अंदर वो इतने नजदीक हो गए प्रेम के कारण से। And then they had love for the Lord and love for each other. और उनको परमेश्वर से प्रेम था और आपस में भी बहुत प्रेम था। After church service over, when they meet together, the only thing they talk about is the Lord. और जैसी सभा खत्म होती थी संडे की, वो एक ही विषय में बात करते थे, वो था प्रभु के लिए बात करते थे। They're very simple people, very poor people, but full of love. बहुत साधारण और गरीब से लोग थे, पर पूरे प्रेम से भरे हुए थे। And I couldn't help remembering this particular verse about how when you go through trials, love, God's love is poured into hearts. और ये बात जो है ये आयत एकदम सामने आती है कि जैसे हम समस्या में जाते हैं, परमेश्वर अपना प्रेम हमारे हृदय में उंडेल देता अपनी आत्मा के Love for द्वारा। God, love for each other. परमेश्वर से प्रेम और एक दूसरे से प्रेम। And no one complained about the persecution they went through. और एक ने भी शिकायत नहीं करी वो सतावट के बारे में जिसके दौरान जिसमें से वो गए थे। They're only talking about the glory of the Lord and the love of the Lord. सिर्फ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के प्रेम, इसी की बात करते थे। And in fact, when I went to the church after two Sundays when I was missing there, the pastor said, next week go to another church, take it to some other church. Let them also benefit from their ministry. और जब भाई वहां 2 हफ्ते गए, उसके बाद गए तो उन्होंने बोला अगले हफ्ते हम आपको दूसरी कलीसिया में लेके जाएंगे, उनको भी आशीष मिलनी चाहिए। Let their pastor and their church also benefit, so don't come here, we'll take you there. They took me to another church. How many people do that today in our churches? और उन्होंने बोला हम आपको दूसरी कलीसिया में लेके जाएंगे, वहां के लोगों को भी आशीष मिले। ऐसा कहाँ आज की कलीसिया में लोग ऐसा बोलते हैं। And so much of oneness among them and different churches because they all belong to Jesus. They're all persecuted by the others. और उनमें एकता बनी हुई है क्योंकि सब प्रभु के नाम से सताए जा रहे हैं, उनमें सब एक साथ हैं। 70 years of persecution, communist regime, and yet the church is so strong and powerful. 70 साल कम्युनिस्ट जो राज है उसने उनको सताया, फिर भी कलीसिया इतनी नजदीक है प्रेम में। So through trials, we manifest the love of God. तो परीक्षाओं के द्वारा से हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं दूसरों पे। The 10th point I want to share और जो 10वीं बात है आपसे बांटने के लिए is completeness in Christ. वो है मसीह में संपूर्ण होना, Fullness in Christ. मसीह में परिपूर्ण होना। In John 10:10, Jesus says, यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, the thief comes to steal and kill and destroy. चोर किसी और काम के लिए नहीं वरन सिर्फ चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। But I have come to have life and have it in abundance. मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। Now this abundant life all of us talk about, and we know that in the Bible, that particular verse, but is abundant life really manifest in our lives? तो ये बहुतायत का जो जीवन है इसके बारे में बाइबल में बहुत पढ़ते हैं, पर क्या ये बहुतायत का जीवन हमारे जीवन से प्रकट हो रहा है? Abundant life is not in the abundance of our possessions. ये बहुतायत का जीवन ये नहीं कि हमारे पास बहुत धन संपत्ति है। In Luke 12:15, Jesus says, लूका 12:15 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, a man's life does not consist in the abundance of his possessions. कि मनुष्य इस प्रकार के लोभ अपने बीच में, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। This fullness in Christ is also mentioned in Colossians chapter 2:9 and 10. और ये बहुतायत का जो जीवन है कोलोसियों 2 अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत में भी हम पढ़ते हैं। Paul writes, और पौलुस लिखते हैं, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, and you have been given fullness in Christ. क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी से में भरपूर हो गए हो। This fullness takes time. It doesn't happen overnight. और ये जो परिपूर्ण होना ये समय लेता है, ये एकदम से नहीं हो जाता। And we have to go through trials to manifest this fullness. और हमें परीक्षाओं में से जाना पड़ता है इस परिपूर्णता को दिखाने के लिए। And in those trials, God expects us to rejoice. और इस परीक्षा में परमेश्वर चाहता है कि हम जो है आनंद करें। James chapter 1, 2, 3, 4 we read. याकूब 1 अध्याय उसकी 2, 3 और 4 आयत में हम पढ़ते हैं, Consider pure joy when you face trials of many kinds.
जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। But the testing of our faith develops perseverance. यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। Perseverance must finish its work in you, that you be mature and complete, not lacking anything. पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। Not lacking anything means completeness. किसी चीज की घटी ना हो मतलब संपूर्ण हो गए। So that comes in the end. और ये तो अंत में आता है। But we have to go through all kinds of trials, perseverant trials. Perseverance means an old English word for that is long suffering, which means suffering long. और ये हमें जो है उसमें लगातार बने रहने से हमारे को ये मिलता है। और इंग्लिश भाषा में परसिवरेंस शब्द मतलब कि देर तक उसको सहते रहना। And while going through trials, we are called to consider pure joy, not just joy, pure joy. और जब हम समस्या में जाते हैं तो हमें बुलाया गया कि हम उसको बड़े आनंद की समझे, प्योर मतलब शुद्ध आनंद की बात समझे। Because we are in the process of becoming mature and complete, having manifesting the fullness in Christ. क्योंकि हमें बुलाया गया कि हम सिद्ध बने, परिपूर्ण बने, परमेश्वर की परिपूर्णता महिमा अपने जीवन से प्रकट करें। When he spoke about the second blessing of trials, and I spoke on faith, you remember that we spoke about how through trials our faith gets refined. और पिछली बार जब भाई ने बताया था कैसे सीखा था हमने, कैसे परीक्षाओं के द्वारा से हमारा विश्वास जो है वो स्वच्छ होता जाता है, साफ होता जाता है। In 1 Peter chapter 1 verse 7, like gold refined through fire, we have to go through trials. पहला पत्रस पहला अध्याय 7वीं आयत में जैसे सोना आग में से निकल के ताए जाने के बाद स्वच्छ होता है, वैसे हमें भी स्वच्छ होना है। And gold being refined basically means we are made complete, whole, and manifest maturity. और स्वच्छ होना मतलब संपूर्ण हो जाना, पूरी परिपक्व हो जाना उसमें। So the question is, when we go through trials, are we rejoicing? Do you consider pure joy? तो प्रश्न ये उठता है कि जब हम समस्या में जा रहे हैं तो क्या हम इसको आनंद की बात समझते हैं Or do we complain? या हम शिकायत करने लगते हैं। In Philippians chapter 2, फिलिपियों 2 अध्याय में पढ़ते हैं, after speaking about obeying God not only in Paul's presence, also in his absence, he said, you obey God not only in my presence, also in my absence. पौलुस कहता है कि ना केवल मेरी उपस्थिति में आनंद रहो, आज्ञाकारी बने रहो, पर मेरी अनुपस्थिति में भी। He writing to the Philippians. तो फिलिपियों के कलीसिया को लिख रहा है ये बात। Work out your salvation with fear and trembling. Working out is not working for, but manifesting the fullness in Christ. Working out salvation. वो कहता है अपने उद्धार के काम में लगे रहो, जो कोई बाहर के काम है, अपने अंदर नहीं, बाहर के काम में भी। For God is at work in you to will and to act according to his good purpose. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम करने में लगा हुआ है कि अपनी इच्छा को, अपनी जो उसकी मनसा है उसको पूरा कर सके। You are the workmanship of God. You will always be the workmanship of God. हम परमेश्वर के हाथ की रचना है, उसके काम की है, काम उसने हमें बनाया और हम हरदम उसी के बने रहेंगे। He'll never stop working in us. वो हमारे पे काम करना कभी बंद नहीं करेगा। So in verse 14, 15, 16, Paul writes, इसलिए 14, 15, 16वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, do everything without complaining or arguing. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, That you may become blameless and pure, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर भले बनो, children of God without fault in a crooked and depraved generation, as you shine like stars in the universe, as you hold out the word of life. और परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनो, जिनके बीच में तुम जीवन वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक की नाई दिखाई देते हो। So when we go through trials, God expects us not to complain, not to argue, not to question God. तो हम जब समस्या में जाते हैं तो परमेश्वर हमसे आशा रखते हैं कि हम परमेश्वर से प्रश्न ना पूछे, शिकायत ना करें। Because He's refining us, He's making us like pure gold. क्योंकि परमेश्वर हमारे को स्वच्छ कर रहा है, हमारे को सोने की तरह वो बिल्कुल साफ करता चला जा रहा है। Why complain? तो हम शिकायत क्यों करें? Complaining is a thing that is very detestable to God. और शिकायत करना से परमेश्वर को बहुत, वो ये एक ऐसी चीज है बिल्कुल पसंद नहीं करते। In the Old Testament time, when they grumbled against God, God sent snakes to bite them and people died in the desert. और पुराने नियम में हम देखते हैं जब लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया तो परमेश्वर ने सांप भेज दिया, जिन्होंने काट के वो लोग मरने लगे। Today God doesn't do that. Thankfully He doesn't do that today. और हम परमेश्वर का धन्यवाद दिए कि आज के समय में हमारे साथ वो ऐसा नहीं करते। Can you imagine if God were to send snakes when Christians grumble? On Sunday morning you will find live snakes and dead bodies in the church. और अगर हम आज के समय परमेश्वर ऐसा भेजने लगे सांपों को, तो हम संडे के दिन देखेंगे कि जिंदे सांप और मरे हुए लोग वहां पाएंगे। But God is so gracious and compassionate. पर परमेश्वर इतना दयालु है, इतना कृपालु है।
but he still does not like grumbling. पर फिर भी परमेश्वर जो कुड़कुड़ाना पसंद नहीं करते. And therefore, instead of grumbling, when he's doing something wonderful, refining us and making us pure and making manifesting fullness in us, why should he grumble? We should consider pure joy. तो जब हम इतना अद्भुत कार्य परमेश्वर का हमारे जीवन में हो रहा है और उसको हम प्रकट कर रहे हैं उसके जीवन को, तो हम इस बात से क्यों कुड़कुड़ाएं? हम इसमें उसको आनंद की बात समझें. Now you understand why it says in 1 Thessalonians chapter 5, 16, 17, 18. इसलिए अब हम पढ़ते हैं, जानते हैं इस बात को कि पहला थिस्सलुनीय 5वां अध्याय 16 से 18वीं आयत के बीच में, Rejoice always, सदा आनंदित रहो, pray without ceasing, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, in everything give thanks. और हर बात में धन्यवाद करो, For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है. When you go through affliction, be patient. तो जब हम समस्या में से जाएं, हम धीरज रखें. Romans chapter 12, 11 and 12 says, रोमियो 12वां अध्याय 11-12 में हम पढ़ते हैं, never be lacking in zeal. अपने प्रयत्न करने में आलसी ना हो, Keep your spiritual fervor serving the Lord. आत्मिक आनंद से भरे रहो, परमेश्वर की सेवा करते रहो. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो. It's very simple instruction, but we simply have to obey. बहुत सीधी सादी हिदायतें हैं, हमें इसकी आज्ञा माननी है. Just reading the Bible and hearing the word of God being preached is not enough. You have to obey. Then only we have the full blessings. परमेश्वर के वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, वचन सुनना, यही काफी नहीं है, हमें उसकी आज्ञा माननी है, उसको करके दिखाना है. So now we have 10 reasons not to grumble, argue, question God, to rather rejoice in trials. तो हमारे पास 10 कारण मिल गए हैं कि जब समस्या में जाएं तो परमेश्वर सामने कुड़कुड़ाए नहीं, प्रश्न ना पूछे, पर आनंद करें. I hope now we understand that trials are a blessing when it's according to the will of God. तो अब हमने सीखा कि कैसे परीक्षाएं जो हमारे आशीष हैं, जब समस्याओं में हम जाते हैं तो. Now the first thing we have to ask God to show us when we go through trials is, why are we facing those trials? Have we done something wrong, or is it because of our obedience to God? तो जब हम परीक्षा में से जाते हैं, ऐसी परेशानियों में से, तो हमें परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु ये समस्या क्या मेरी गलती से है या आपकी ओर से, आपकी ओर से है. In 1 Peter chapter 5, 12 to 16, पहला पत्रस 15, 12 से 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं. Peter writes, लिखता है, Dear friends, don't be surprised at the painful trial or suffering as though something strange were happening to you. और प्रिय भाइयों, तुम इस बात को कोई अजीब बात ना समझो जब तुम इन समस्याओं को अपने जीवन में होते हुए देखते हो. But rejoice that you participate in sufferings of Christ, that you may owe joy when His glory is revealed. और इसमें अब आनंद की बात समझो, और ये हमारे लिए जब महिमा में हम प्रकट होगा, हमारे को इससे और भी अधिक परमेश्वर हमारे को आनंद देगा. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the spirit of glory of God rests upon you. Brother, it is 1 Peter chapter 5. It's chapter 4. They say 4 or 5. It's chapter 4, I think. Sorry. अच्छा, okay. Just check it out. It's 4th chapter, I think. 4th chapter, verse 12 to 16. हाँ. Now, हाँ, हे प्रियो, तुम दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़की है. इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीती है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा प्रकट होते समय भी तुम आनंद और मगन हो. If you suffer, shouldn't be as a murderer or thief or any other criminal. If you suffer as a Christian, praise God that you bear that name. तुम में अगर कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने पर प्राय काम हाथ डालने के कारण दुख पाए, तो पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, इस बात में परमेश्वर की महिमा करे. If you suffer as a Christian, that's the question. Are we suffering as Christians or are we suffering because something wrong we have done? यहाँ लिखा यदि मसीह होने के कारण दुख उठाओ, तो हमें ये देखना है कि क्या हम मसीह परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं या अपने गलती के कारण दुख उठा रहे हैं. And you may make a mistake and you suffer, ask God forgiveness, repent and turn from it, and you won't come under judgment. अगर हमसे गलती हुई, हम पछतावा करें, परमेश्वर से माफी मांगे और उससे मुंह फेर ले, दोबारा उस गलती को ना करें, परमेश्वर हमारे को क्षमा करेगा. But because of our standing for the Lord, we rejoice and praise God. Don't feel bad about it. और अगर परमेश्वर के लिए खड़े होने के कारण से समस्या आ रही है, तो हम इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, हमें इसमें और आनंदित होना है. Because there are 10 reasons why we should praise and worship Him and not grumble. तो ये 10 कारण हमने देखे जिसके कारण से परमेश्वर की हमें उसमें आराधना करनी है, उसमें खुश रहना है, उसके लिए कभी कुड़कुड़ाना नहीं है. May God bless us as we apply these teachings in our lives and
in future ask God's counsel, and by faith rejoice in all circumstances. That's the will of God for us. और हम जो है विश्वास में इन बातों को पकड़े रहें और इन बातों चलते रहें कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से यही है कि हम उसके लिए इस परीक्षाओं में उसके लिए उसकी इच्छा को पूरा कर सकें. God bless us. परमेश्वर हम सबको आशीष दे.